कल के क्लास में हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस का नेहरूवियन एरा ख़त्म कर लिया था। तो बाकी का पार्ट 2 में आज ख़त्म कर लेंगे। आफ्टर द नेहरूवियन एरा 1964 से शुरू होता है शास्त्री एरा। ठीक है। सो नेहरू डाइड इन 1964 विदाउट ए सक्सेसफुल, कोई एक सक्सेसर उनका नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने। ओके। कॉन्सिक्वेंटली a group of Congress leaders that came to be known as the syndicate, including Congress President कामराज। कामराज was very famous। कामराज के बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री, he was known as the king maker. He was known as the king maker, and we also know about the कामराज प्लान। कामराज प्लान के बारे में मेंस में 2007 में आया था, 7 या 8 में। एंड कामराज का कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फ्रीडम स्ट्रगल, this also we have covered in modern history contributors chapter. Okay, fine. So Kamraj was also the Congress president at that point of time. He managed this syndicate was a group. They managed the succession and preferring Lal Bahadur Shastri over the Morarji Desai in the hope that he would be more playable and not challenge the syndicate leadership. So basically politically he became the prime minister. So these information are not much required, but what he did at that point of time from 1964 to 66, 2 years. Okay. So Shastri supported the green revolution to boost India's food production. So green revolution को उन्होंने support किया, and उन्होंने also white revolution को भी support किया था. Okay. फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट किया। देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एफसीआई, जो कि प्रोक्योर करता है। एफसीआई इकोनॉमी में हमने पढ़ा था। वाइट रिवोल्यूशन को भी सपोर्ट किया टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क इन इंडिया, एंड ओवरसॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमूल मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ आनंद, उसी टाइम पे हुआ था। एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, जो हम इकोनॉमी में पढ़े थे। लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड आज भी न्यूज़ में है। So ये उसी टाइम हुआ था। One more important point during his era was the setup of PMO, Prime Minister's Office, जो आज के डेट में है। In today's time we talk about the Prime Minister's Office. So it was Shastri who set up his own Prime Minister's Secretariat, headed by his principal private secretary LK Jha, to inform and advise the PM on policy matters independent of the ministries. The Secretariat soon came to be known as the PMO and acquired a great deal of influence over policy matters. Under Indira Gandhi, it virtually emerged as an independent executive at that point of time, because after Shastri, Indira Gandhi will come. So during the Indira Gandhi time, it emerged as a separate, very powerful separate executive. So PMO independent. So you have to remember कि PMO जो ऑफिस है आज के डेट में, ये initially 1950 से आया नहीं था. Okay, so one is setting up of PMO. The other, there was a very big war, Indo-Pakistan war. Okay. So the Kashmir issue, which was already there in 1948, it was not settled. So likely war was, so eventually war was there. Okay. So in 1965 there was war. Don't need to explain all these things. So at that point of time, obviously United Nations Security Council, because in the United Nations obviously this issue was already there from 1948. Okay. So it had an adverse impact on both the countries, but it helped India to regain some of its self-confidence that had been lost after 1962 war with China. So during this war, Shastri gave the popular slogan of Jai Jawan, Jai Kishan. Jai Jawan, Jai Kishan is a very popular slogan of Lal Bahadur Shastri. So one is PMO, one is war. Then in 1966, finally the Tashkent Declaration happened. Okay. So under the auspices of Soviet Union, okay, we took help of Soviet Union. The Tashkent Declaration was signed between Pakistan, that is General Ayub Khan, and Shastri, as per which both agreed to mutual restitution of territories and return to pre-war position. So the war ended with the Tashkent Declaration.
Though this meant withdrawal from the strategic Hajipir Pass for India, Sastri had agreed, as his refusal would have meant resumption of the war as well as loss of Soviet support. So he agreed, ki, okay, fine, because or else war would have continued and Soviet support, we would have lost on the Soviet support. But even before Shastriji could return to India, he died of a sudden heart attack in Tashkent on 10th January 1966. So it was a very short period. So you have to remember these three things happened. Shastri's sudden and tragic death once again raised the issue of succession. Who will be the prime minister now? This time, the choice of the syndicate fell upon Indira Gandhi. Okay, in the hope that the young woman lacking experience would be pliable and give free hand to the syndicate leadership. So finally, Indira Gandhi became the prime minister. Okay. Now coming to the Indira Gandhi era, that is the during from 1966, then 67, 77, then there was a Morarji Desai period for very small time, 2 to 3 years after the emergency, then again 1980 to 84. Okay, fine. So in Indira Gandhi period, what happened? Early years, 1966 to 69. Became the prime minister at a time when the country was facing grave problems from several fronts. War was there. Okay, several things, like from economy side also, things were not that good because we were importing a lot of things, because green revolution had just started. It was not self sufficiency. Like we did not reach the level of self sufficiency. We'll reach this level of self sufficiency at 1980. ओके, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन फुल फ्लेजेड अच्छे से हो गया था, फिर जाके हमने सेल्फ सफिशिएंसी लेवल पे पहुंचे. बट अभी we are not yet into self-sufficiency level of food production. So at that point of time, several things were happening, like challenges were there. So challenges में पहले तो food imports था, currency devaluate हुआ था. Okay, बहुत ही food import हम कर रहे थे because production, हमारा production was not up to mark. That's why we were importing. Production was not up to mark. ठीक है, नंबर 1. तो हमारा एक्सपोर्ट्स जितना भी था, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए व्हाट वी डिड इज हमने करेंसी डिवैल्यूएट किया, करेंसी डिवैल्यूएशन. ओके, सो हम फूड इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते थे, हमने डिवैल्यू द रुपीज, प्रूव टू बी हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल. हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, सो वी डिड डिवैल्यूएशन. बट कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था. So while devaluation failed in its stated objective of increasing exports and attracting foreign capital, wheat dispatches from the US were irregular and piecemeal. तो सही से कुछ हो नहीं रहा था. So Indira's disappointment with the US found expression in her foreign policy and she began distancing herself from the US. तब India US relations इतना भी अच्छा नहीं था. In fact, India was never to try again to come to close to US on such heavy terms. ठीक है, तो एक है फूड इंपोर्ट, एक है करेंसी डिवोल्यूशन. देन जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 हुआ. ओके, सो वहाँ पे वो जो 1967 इलेक्शन हुआ था, इट स्टार्टेड द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट. ठीक है, कोalition गवर्नमेंट का एरा तब से शुरू हुआ. रिमेंबर, अगर कोई क्वेश्चन आएगा कोalition गवर्नमेंट GS2 पे, सो यू कैन जस्ट राइट कि यहाँ से शुरू हुआ था, इंट्रो में आप दे सकते हो. So 1967 was also the year of general elections in India. Congress, which had been declining since 1964, now suffered a serious setback. Though it still retained hold in the Lok Sabha, as in Indira Gandhi as the Prime Minister and Morarji Desai as the Deputy Prime Minister, its majority drastically declined, both in center as well as several states. तो आहिस्ता आहिस्ता उनका तो majority था वो decline हुआ. The Congress monopoly in states was replaced not by any other single party but multiplicity of parties. तो बहुत सारे पार्टीज आने लगे, तो कोalition गवर्नमेंट का शुरू हो गया. So thus 1967 elections initiated the era of coalition governments as well as the era of defection politics. ठीक है, तब डिफेक्शन भी शुरू हो गया, बिकॉज डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ बाद में आएगा. दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट देयर. ओके, सो डिफेक्शन, बहुत सारे डिफेक्शंस हो रहे थे, ओके, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, काफ़ी सारे. वो इट वाज अनस्टेबल. सो कोalition governments proved to be highly unstable, with the net result that during the brief period between 1967 and 1970, Bihar had seen 7 governments, Uttar Pradesh had seen 4 governments, पंजाब हरियाणा ये सब 3 गवर्नमेंट किए थे. तो काफ़ी, और बहुत सारे प्रेसिडेंट रूल भी लगे थे. सो व्हाट यू कैन डू इज
पॉलिटिकल, सिंपल वर्ड पे अगर लिखोगे पॉइंट वाइज अगर आएगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में आप क्या लिख, डोंट राइट जनरल इलेक्शन, राइट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुआ था, अभी कोalition गवर्नमेंट हुआ था, ठीक है, तो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा। एंड बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट्स बहुत ही ब्रीफ पीरियड पे गवर्नमेंट चेंज हो रहे थे, ब्रीफ पीरियड में गवर्नमेंट्स चेंज हो रहे थे। एंड अनदर थिंग इज, पॉइंट्स में लिखोगे, अनदर थिंग इज प्रेसिडेंट्स रूल, बहुत प्रेसिडेंट्स रूल लग रहे थे उस टाइम पे, यूज ऑफ आर्टिकल 356। सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया इस टाइम पे। नेक्स्ट सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में 3 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट यू कैन राइट, बिफोर लर्निंग अबाउट द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1969, फिर एक स्प्लिट हुआ था, वी शुड हैव ए क्विक लुक ऑन द डेवलपमेंट ऑन द लेफ्ट फ्रंट। तो उस टाइम पे राइज एंड ग्रोथ ऑफ नक्सलिटिस, वो भी नक्सलाइट का काफ़ी सारे राइज उस टाइम पे हुआ था, जो CPM CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। सो अर्लियर इन 1964 द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट प्रो रिवोल्यूशनरी ग्रुप हैड डिफेक्टेड फ्रॉम द CPI से वो अलग होते थे ड्यू टू द परसुएंस ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। However, postponing armed struggle, the CPM actively participated in the 1967 general elections and formed coalition government in West Bengal, and CPM leader Jyoti Basu emerging as the home minister. So no need to write these names, just you need to mention, okay, at that point of time there was rise and growth of Naxalites, this much you have to write, ठीक है, बिकॉज स्कोप नहीं है ज़्यादा लिखने के लिए, और डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं कि CPM का क्या था, CPI का क्या था। जस्ट यू हैव टू राइट राइज एंड ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट्स, एग्जांपल करके आप CPM ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, तो ये सब चीज हो रहा है, टू रिमेंबर द नेम्स फॉर मेंस एग्जाम के लिए, ये सब जरूरी बिल्कुल नहीं है। फिर 1969 टू 1977 काफ़ी लॉन्ग पीरियड, ये इंदिरा गांधी का अच्छा खासा टर्म था इस टाइम पे। सो एक स्प्लिट हुआ, ओके, कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1969। द पार्टी सून स्प्लिट ओवर इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग द राइट लेफ्ट लाइन्स। तो कांग्रेस हमेशा से कहीं ना कहीं राइट विंग भी थे, लेफ्ट विंग भी थे, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी है, ठीक है, राइट विंग और मेंबर्स भी थे, लेफ्ट विंग मेंबर्स थे, तो काफ़ी मिक्स होके था कांग्रेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल उस टाइम पे जो INC का था। Though Congress had always been an umbrella organization representing a diverse mix of political opinions, it had nurtured somewhat left of center image, ठीक है, थोड़ा बहुत लेफ्ट और सेंटर इमेज उनका था, मतलब उतना राइटिस्ट काइंड ऑफ वो नहीं था। ऑब्वियसली सम पीपल वर देयर, बट ज़्यादा वो थोड़ा इसके तरफ टिल्ट किया था हमेशा से जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। द कांग्रेस लेफ्ट लेड बाई इंदिरा गांधी नाउ सपोर्टेड गोइंग बैक टू एंड फर्दर डेवलपिंग नेहरू सोशलिस्ट प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी? लेफ्टिस्ट में हमने पढ़ा था, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजी में हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे पढ़ा था, और एक बार बोल देता हूँ, लेफ्टिस्ट मतलब फुल इक्वलिटी, जल्दी रिफॉर्म चाहिए, फुल सोशलिज्म, सबका इक्वलिटी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, पूरा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। राइटिस्ट में जो स्टेटस को है वो चलने दो, आहिस्ता आहिस्ता हम रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दे सपोर्टेड गोइंग बैक टू फर्दर डेवलपिंग द नेहरू का जो सोशलिस्ट प्रोग्राम था उसको हम और फर्दर करेंगे टू एनहांस इट्स अपील अमंग द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली द हरिजन्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, वुमेन, उनके लिए और काम करेंगे। अदर हैंड द राइट विंग, देखो मोरारजी देसाई उस टाइम पे राइट विंग का था, राइट विंग के थे, तो इसलिए उन्होंने एक अलग सा पार्टी किया। द राइट विंग लेड बाय मोरारजी देसाई एंड द सिंडिकेट एक्सेप्ट कामराज वाज ए फुल कांग्रेस पर्सन, ओके, ही वाज फुल सपोर्टिंग टू कांग्रेस, जो लेफ्ट कांग्रेस हैं। सपोर्टेड ग्रेटर एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द वेस्ट एंड एनहांसिंग अपील अमंग द बिग पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो मोरारजी देसाई राइट विंग के थे, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया, and they wanted to appeal to the landlords, big peasants. So उनके बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, फाइनली स्प्लिट हो गया। सो द पार्टी फाइनली स्प्लिट। सो द स्प्लिट हैपेंड ऑन दैट लेफ्ट राइट इशू, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुआ था, ठीक है। जब भी आप लिखोगे आंसर में एक लाइन उसके साथ लिख देना, स्प्लिट जो हुआ था, द रीजन वाज दिस,
ठीक है, एग्जाम्पल दे दोगे, इंदिरा गांधी लेफ्ट के थे एंड जो राइट विंग थे लेड बाय मोरारजी देसाई एंड द सिंडिकेट ग्रुप एक्सेप्ट कामराज, दे सपोर्टेड द प्राइवेट सेक्टर जो राइट विंग के थे। फाइनली स्प्लिट हुआ। सो विथ इंदिरा सेटिंग अप कांग्रेस आर फॉर रिक्विजनिस्ट। ठीक है, यू कैन मेंशन, अगर आपको याद करेगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल लिखोगे स्प्लिट हुआ था। ओके, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट, तो कुछ पार्टी उनको सपोर्ट भी किया। तो फाइनली इन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जब रूल किए, उस टाइम पर उसका जो टर्म था उनका उस टाइम पे, तो उन्होंने देखो 1969 पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। 1969 पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इकोनॉमी में हमने पढ़ा था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इसी टाइम हुआ था। उस टाइम पे ये काफ़ी वेरी ह्यूज स्टेप था उस टाइम पे। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, प्रिंसली स्टेट्स को जो कुछ मिलता था इंडिपेंडेंस के बाद, कुछ कुछ स्टेट जो थे उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, तो वो भी एबोलिश किया गया थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस। हर पॉपुलरली इमीडिएटली सोड एंड शी इमर्ज एज द चैंपियन ऑफ द मासेस। शी ऑल्सो सेट अप मोनोपोलीज, MRTP। ठीक है, MRTP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MRTP अभी नहीं है, इट्स नॉट देयर राइट नाउ। ओके, MRTP बंद हो गया है। ओके, अभी क्या है? कैन एनीवन टेल मी अभी उसकी जगह क्या है? एनीवन? अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, PCI एक्ट से आया है 2002 से। तो इन्होंने सेम काम है, लेकिन आज के डेट में वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। सो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी अगर मोनोपोली करेगा तो वो सब नहीं चलेगा, तो एक कमीशन बिठाई, MRTP एक्ट हुआ एंड प्रेस द स्टेट्स टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म लॉज। और जितना भी लैंड रिफॉर्म लॉज है सबका स्टेट का अच्छे से उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ही टोल्ड। हाउएवर उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अगेंस्ट द एबोलिशन। उन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं, एबोलिशन ऑफ प्रिवी प्रोसेस नहीं होगा, बट और एक बार फ्यूचर में 70s में जाके उन्होंने फिर से उसको एबोलिश किया। ओके, बट इनिशियली जब किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने प्राइवेट प्रोसेस को एबोलिश किया 1976-77 के टाइम पे। ओके, इट हैड आल्सो अर्लियर इनवैलिडेटेड बैंक नेशनलाइजेशन। ओके, she dissolved the Lok Sabha and called for a general elections a year ahead of time in the hope of returning to the Lok Sabha with a clear majority this time. ठीक है, तो कुछ बोल्ड मेजर्स उस टाइम पे सरकार ने लिया था। यू जस्ट नीड टू हैव दैट पॉइंट इन माइंड, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रोसेस लिया था। ओके, और MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन हुआ था। फिर 1971 इलेक्शन हुआ। 1971 इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड उनका बहुत ही बड़ा एलियंस उनके अगेंस्ट में था, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हराया था। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, हम पॉलिटिकली नहीं जाना, हमको आंसर के फॉर्मेट में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन था, गरीबी हटाओ। ओके, ये बहुत ही काम दिया, बिकॉज द ग्रैंड एलियंस जो इनके सामने था, ऑपोजिशन को जो एलियंस बना था, दैट एलियंस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ इंदिरा हटाओ, तो इन्होंने गरीबी हटाओ किया और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंडेट जीता। ओके, लेकिन इस टाइम पे चैलेंज और था। ओके, सो सेकेंड टर्म जब आए इस टाइम पे, अब इसी टाइम पे हुआ क्या, इसी टाइम पे सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो था बांग्लादेश क्राइसिस, जो लिबरेशन वॉर हुआ था। इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर इंडिया। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हमने साथ दिया था। ओके, वी सपोर्टेड। सो प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट ओनली 2 to 3 लाइन्स। बांग्लादेश क्राइसिस में क्या हुआ था, दो पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द इशू ऑफ रिलीजन, राइट। 1948 में रिलीजन को लेके एक कंट्री आई थी। रिलीजन सून प्रूव्ड इनएडिक्वेट टू होल्ड इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विंग्स टुगेदर, बिकॉज वेस्टर्न तो ठीक है, लेकिन ईस्ट में हमारे साइड पे जो बांग्लादेश, वो बंगाल का साइड था जो, तो उसमें ऑब्वियसली बंगालीज भी हैं, राइट। तो इट बिकम प्रॉब्लम।
So soon political power got concentrated in West Pakistan and was widely perceived that East Pakistan was being exploited in many ways. जो हमारे साइड का ईस्ट पाकिस्तान है. So in 1948 what happened is Jinnah had declared Urdu as the federal language of Pakistan, which was seen as an attempt to suppress the culture of Bengali speaking East Pakistan. यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग बहुत होते हैं, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर आप पूरा पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज आप लाते हो एज अ फेडरल लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली द बंगाली स्पीकिंग पीपल वेर नॉट okay with it. So the Bengalis were also underrepresented in the Pakistani military and also faced discrimination in budgetary allocation. So these are the main reasons जहाँ से शुरू हुआ था liberation. The people of East Pakistan soon raised a demand for greater autonomy and launched a powerful pro-democracy movement under the leadership of very famous Mujibur Rahman of the Awami Party. तो ईस्ट पाकिस्तान का पीपल उन्होंने डिमांड किया, वी नीड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी, एंड उन्होंने एक पावरफुल डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू किया मुजीबुर रहमान उनके पार्टी में. और यहाँ पे इंडिया ने साथ दिया. डिटेलिंग जरूरत नहीं है, इंडिया ने साथ दिया यहाँ पे. ओके, तो जब ये आप पढ़ लेना जो बेसिकली वॉर हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान इनिशिएट किया था ऑपरेशन सर्च लाइट. उतना डिटेलिंग मतलब जीएस में तो आएगा नहीं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन है, सो यू कैन मेंशन. मुक्ति वाहिनी जो लिबरेशन एक आर्मी हुई थी बांग्लादेश में, वो भी हुआ था. तो आपस में फाइट हुई. ओके, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने काफ़ी अच्छे से करेज दिखाई और इंडिया साइड से उन्होंने एक्शन लिया एंड उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हेल्प किया. फाइन. तो फाइनली हुआ क्या? सो वॉर तो चल रही थी, तो इंदिरा गांधी ने कन्विंस अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ द वॉर. वॉर तो होगा ही, पता चल गया था. सो इंदिरा गांधी मेड प्रिपरेशंस अलोंग द अबव लाइंस टू फर्दर सिक्योर इंडिया अगेंस्ट अ पॉसिबल यूएस चाइना इंटरवेंशन. क्योंकि यूएस के साथ रिलेशन हमारा उतना अच्छा नहीं था. ओब्वियसली चाइना के साथ एक वॉर हो चुका था. तो यूएस एंड चाइना इंटरविन करने से पहले, बिफोर दे कुड इंटरविन, व्हाट वी डिड इज वी हैड अ सोवियत इंडो सोवियत ट्रीटी. हमने सोवियत के साथ एक ट्रीटी बना दी, साइंड अ 20 ईयर इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन उसी टाइम पे. ठीक है. So by November 1971, when the number of refugees from East Pakistan reached 10 million, obviously जब war होगी तो refugee crisis होगा ही, तो 10 million refugees आ गए थे. So India was fully prepared for war. So on 3rd December 1971, the war finally began when the Pakistani Air Force launched a surprise attack on military fields in Western India. ठीक है, वेस्टर्न इंडिया पे अटैक पाकिस्तानी फोर्स ने किया. इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय इमीडिएटली रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश एंड लॉन्चिंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन. यूएस ने इंटरविन करने की कोशिश की. यूएस ट्राई टू इंटरविन बट इट्स प्रपोजल फॉर ए सीज फायर वाज वेटोड बाय रशिया और सोवियत यूनियन उस टाइम पे. क्योंकि सोवियत यूनियन इनके साथ, इंडिया के साथ ट्रीटी कर चुका था, तो ऑब्वियसली उन्होंने सीज फायर के लिए वेटो किया. ओके, और उस टाइम पे इंडिया का फोर्सेस वाज लेड बाय जनरल Manekshaw, वेरी फेमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. सराउंडेड डक्का एंड डक्का का एरिया जो है वो सराउंड किया एंड फोर्स द पाकिस्तानी आर्मी टू सरेंडर ऑन 16th December. द नेक्स्ट डे इंडिया अनाउंस्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. मुजीबुर रहमान वाज रिलीज्ड क्योंकि वो अरेस्ट हो गए थे, एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन बांग्लादेश इन 1972. अब इस बांग्लादेश वॉर में इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत आ गया हमारे यहाँ. So India's popularity shot up phenomenally and she reached the peak of her power and glory. India now emerged as a preeminent power on the world stage. क्योंकि वॉर बहुत बड़ी चीज़ होती है. ओके, एंड द ह्यूमिलेटिंग मेमोरीज ऑफ द 1962 वॉर हैड बीन वाइप्ड आउट. जो 1962 पे ह्यूमिलेशन हुई थी चाइना के साथ, तो वो सब भूल गए अभी. So India's pride and self-confidence had been restored. The Bangladesh crisis had strengthened India's secularism. तो देखो, जब सेकुलरिज्म के साथ भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मुस्लिम्स के लिए, जो बंगाली मुस्लिम्स है उनके लिए भी किए, मतलब उनके ऑटोनॉमी के लिए हमने सपोर्ट किया. तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेकुलरिज्म को हमने और अच्छे से इम्पेटस दिया. ओके, एंड गिव अ severe blow to the two nation theory which had been the basis of India's partition. ठीक है.
तो जून 1972 में शिमला डिक्लेरेशन हुआ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कहाँ पे ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था, दिस वन इज द शिमला डिक्लेरेशन। ओके, तो शिमला डिक्लेरेशन में रियलाइजिंग द नीड फॉर म्यूचुअली अराइव्ड एट इंडो पाक सेटलमेंट फॉर ड्यूरेबल पीस, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला पे दे मेट एंड साइंड एन एग्रीमेंट व्हिच केम टू बी नोन एज द शिमला डिक्लेरेशन। एज पर द एग्रीमेंट हुआ क्या, इंडिया रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तानी टेरिटरी it had occupied except some strategic points in Kashmir. Pakistan agreed to respect the LOC and both agreed to settle their disputes bilaterally without any outside mediation. कोई बाहर का country without any outside mediation they bilaterally solved. India also agreed to release the prisoners of war following a Pakistan-Bangladesh agreement भी हुआ which occurred the next year after Pakistan recognized Bangladesh. Next year पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को recognize किया। ओके, तो एक वॉर हुआ था फाइनली। फिर क्या हुआ इनके टाइम पे, दिस 70 अर्ली 70s, इंदिरा गांधी इम्प्लीमेंट्स लेफ्ट ऑफ सेंटर एजेंडा। ओबियसली कांग्रेस वाज मोर ऑफ लेफ्ट और थोड़ा बहुत सेंटर के इंक्लिनेशन था उनका। सो बहुत सारे मेजर्स लिया गया, उसमें जनरल इंश्योरेंस एंड कोल इंडस्ट्री वर नेशनलाइज्ड, ceilings are imposed on urban land ownership. To check the businessman's influence in politics, ban was imposed on donations by joint stock companies to political parties. ठीक है, तब दो चीज हुआ था। अब ध्यान से अगर देखोगे, केशवानंद भारती केस भी आया था साइड बाय साइड। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को वी कांट change the basic structure of the constitution. We can do amend without changing the, we can amend the constitution without changing the basic structure. So 1971 में Indira's government passed 24th and 25th constitutional amendments act. अब 24th amendment में it restored the parliament's authority to amend the fundamental rights which the Supreme Court had taken away in 1967 in the Goloknath case, and later invalidated bank nationalization on the ground of inadequate compensation एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस। ठीक है, तो ये सब चीज हो रहा था। 25th अमेंडमेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी एंड परमिटेड द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक यूज ऑन द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। और उसको डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एंड नॉट द कोर्ट्स। ये भी 25th अमेंडमेंट में एक रूल लाया गया। ओके, और एक चीज 1974 में हुआ था, जो पोखरन का न्यूक्लियर टेस्ट पहला वाला। India took a major leap ahead in the field of scientific development when the Atomic Energy Agency detonated an underground nuclear device at Pokhran. The government, however, insisted that India was committed to use nuclear technology for peaceful purpose. Despite these achievements, 1973 onwards, the tide began to turn rapidly against Indira Gandhi, owing to several factors. क्योंकि इसी टाइम इतना पॉपुलरिटी हो गया, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी स्टार्टेड, आई नॉट यूज द वर्ड मिस यूज, थोड़ा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो गया। ठीक है, गिविंग मोर पावर्स टू द पार्लियामेंट देन द कोर्ट्स, कर्टलिंग द जो कोर्ट्स का जो चीज होता है, जुडिशियल रिव्यू को भी उन्होंने बंद करा दिया था कुछ टाइम के लिए। ओके, बिकॉज उनके पास पावर है, तो दे हैव पावर टू मेक लॉज, तो वो काफी अमेंडमेंट करते थे। ओके, खासकर जो 42nd अमेंडमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सो इन्हीं के अगेंस्ट में एक चीज आई जो है जयप्रकाश नारायण, दैट इज द टोटल रेवोल्यूशन। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पे तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। वी हैव कंप्लीटेड द जयप्रकाश नारायण इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटर्स चैप्टर। ओके, कॉन्ट्रीब्यूटर्स चैप्टर, और जब हम नया शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और एक बार भी वो कंटिन्यू होगा। तो जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने, और जयप्रकाश नारायण ऑल्सो टुक ए वेरी एक्टिव पार्ट प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस में भी काफी काम किया था उन्होंने, पोस्ट इंडिपेंडेंस में उनका मेन काम यही है। ओके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी उन्होंने किया थी इन 1934। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स लाए, बिकॉज उस टाइम पॉवर्टी भी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी था, रिसेशन भी था, प्लस सही चीज हो नहीं रही थी, शॉर्टेज ऑफ फूड था, एंड प्लस सेंट्रलाइजेशन था। ओके,
सो इसीलिए ये काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन दिया लोगों को। सो पॉपुलर मूवमेंट्स शुरू हो गया। बिहार बिहार से शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण बिहार से थे, तो बिहार मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय स्टूडेंट्स इन बिहार एंड लेड बाय जयप्रकाश नारायण, एंड ही वाज अ स्टॉन्च गांधीयन। ओके, एंड अगेंस्ट द मिस रूल एंड करप्शन भी बहुत हो रहे थे, बिकॉज पीएसयू सब कुछ कर रहा था। ओके, गवर्नमेंट पीएसयूज, तो करप्शन बहुत हो रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट दिस डिक्टेटरशिप। ओके, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज के खिलाफ उन्होंने किया, जिनको हम टोटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति। ओके, नाउ दिस टोटल रिवॉल्यूशन कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन, बट दे विल आस्क इन GS1। रिसेंटली बिहार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जयप्रकाश नारायण के बारे में, यूपीएससी में भी आ सकता है, बिकॉज वी हैव ए सेपरेट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एक टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ का जो कॉन्ट्रीब्यूटर, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, एक टॉपिक है मेंस के लिए। अराउंड 20 to 25, वैसे तो हमने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटर्स किए हैं, मोर देन 40-50, लेकिन मिनिमम 10-12 जो है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और ये प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये सब चीज़ हुआ था। और यहाँ पे और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कवर कर सकते हो। जेपी मूवमेंट और जयप्रकाश मूवमेंट, टोटल रिवोल्यूशन अगेंस्ट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। फिर इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा गांधी प्रोक्लेम्ड स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रॉमिसिंग रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी एज सून एज कंडीशंस अलाउड इट। During the emergency, which lasted for 19 months, federal provisions and fundamental rights were suspended. The press was censored and opposition stifled. On 26 June, hundreds of opposition leaders, including Morarji Desai, Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee, वो सब अरेस्ट हुए थे अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बिकॉज ये सब उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सब अरेस्ट हुए थे। इवन विद इन कांग्रेस, इंटरनल डेमोक्रेसी वॉज स्निफल्ड। इंटरनल डेमोक्रेसी भी नहीं था। कॉन्सेंट्रेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर, वो सब डिसीजन वही ले रहे थे। ओके, इवन उन्होंने इमरजेंसी कैबिनेट को बिना पूछ के ही लगाई थी। ओके, सो इसीलिए उसके बाद अमेंडमेंट आया कि कैबिनेट को पूछना, एंड यू हैव टू टेक द रिटन परमिशन ऑफ कैबिनेट, इट्स मैंडेटरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 352 में। तो ये सब चीज़ बहुत सारे हो रहे थे इमरजेंसी के टाइम पे। वी ऑल नो व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। पुलिस को स्पेशल पावर दिया गया। ओके, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। फाइन। सो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, which was again seen as an attempt to tamper with the very basic structure of the constitution, and it proved to be the most controversial. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, because it brought widespread changes, and it is called as a mini constitution, and also it was controversial because it tampered with the basic structure. कैसे? It attempted to reduce the power of judicial, that is the power of Supreme Court and High Court. That is, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको कम कर दिया। इट कटल इट, रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ लॉज। इट लेड डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स टू द नेशन। ये अच्छा था। फंडामेंटल ड्यूटीज इसी टाइम आई थी, आर्टिकल 51A। It brought about widespread changes to the constitution and is sometimes referred to as mini constitution. So जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साइड में यू कैन जस्ट राइट व्हाई इट इज कॉल्ड 42nd अमेंडमेंट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जस्ट मेंशन अराउंड 5 to 6 important changes, controversial changes, so that you get the mark. Lot of changes were there. If you write simple points, you will not get the mark. You have to write controversial points, which got changed in 44th Amendment Act. ठीक है, जो मेंस के एग्जाम दे रहे हो, यू कैन जस्ट प्रिपेयर ए नोट कि ये पॉइंट हम एग्जाम पे लिखेंगे। विल राइट दीज 4 to 5 पॉइंट्स, बिकॉज मेंस में 150 वर्ड का आएगा, मैक्स टू मैक्स 250। ठीक है। Even in 1976, Indira Gandhi got the parliament to postpone elections by 1 year. The delay in lifting the emergency made people cast doubt on Indira's intentions. तो उस टाइम पे थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड फॉर हर। ओके, इसलिए उन्होंने उसके बाद जो इलेक्शंस हुआ, शी लॉस्ट।
Another significant reason for the growing dissatisfaction of the people with the emergency was the rise of Sanjay Gandhi, the younger son of Indira, as an extra constitutional power center. He held no office in the party or government and yet wielded considerable influence in the governance and administration. उनका जो बेटा था. The most controversial of Sanjay's actions was his insistence on family planning, leading to forced sterilization. ये भी हुआ था उस टाइम पे. Even though these cases were only few, rumor had it that thousands were being forcibly sterilized. Similarly, Sanjay Gandhi also insisted on city beautification program through slum clearance and demolition of unauthorized structures, which was also carried out with equal carelessness and cruelty. बहुत cruelty के साथ ये सब चीज हो रही थी. Slum को हटाना. Such excesses committed under Sanjay Gandhi's direction worsened the situation and escalated the crisis. और भी disenchantment हो गया लोगों में, तो पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी. ठीक है, तो एक संजय गांधी का नाम आप लिख सकते हो. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनको मिला विदाउट होल्डिंग एनी ऑफिस इन द गवर्नमेंट. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 to 3 कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स आप लिखोगे. ओके, दीज थिंग्स वर हैपनिंग. फिर इमरजेंसी लिफ्ट हुआ एंड इलेक्शंस हुआ 1977 में. सो सडनली इंदिरा गांधी सडनली अनाउंस द फ्रेश इलेक्शंस. Simultaneously, the repressive government machinery was withdrawn. Free and fair elections was conducted, and on 16 March, the mighty government of Indira Gandhi was voted out, and Janata Party came into power. इसी टाइप पे जनता पार्टी आई थी मोरारजी देसाई की. ओके, लेकिन ये जो बीच में थोड़ा बहुत आई थी, इनको बोलते हैं द जनता इंटरनेट. बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी. उन्होंने काफी चेंजेस किया. उन्होंने वापस सब चेंजेस किया. दैट इज द 44th अमेंडमेंट. यहाँ पे आप एक ही चीज लिखोगे, 44th अमेंडमेंट. ठीक है, 44th अमेंडमेंट में रिस्टोर्ड ऑल द प्रीवियस थिंग्स. ओके, यहाँ पे 1-2 लाइन लिखोगे. रूरल लोगों के लिए काम किया, फूड फॉर वर्क गवर्नमेंट. ठीक है, ज्यादा टाइम रहा नहीं, 77 to 79. ओके, और यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं ज्यादा. तो एक मिड टर्म इलेक्शंस बीच में हुआ था, बिकॉज उनके बीच में प्रॉब्लम हुआ. द गवर्नमेंट फ्रंट, द फाइनेंस मिनिस्टर चरण सिंह ब्रोक अप द जनता पार्टी व्हेन द जनसंघ मेंबर्स रिफ्यूज टू गिव अप द डुअल मेंबरशिप ऑफ जनता पार्टी और एंड द आरएसएस. तो उनके बीच में भी एक प्रॉब्लम हुआ था इन वही पार्टी के अंदर. ठीक है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी भी उनका नहीं था. सो मिड टर्म इलेक्शंस हुआ. मिड टर्म इलेक्शंस में अगेन 1980 में इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर विद अ मैसिव मैंडेट 2/3. ठीक है. So in the aftermath of the elections, the Janata Party split once again when the old Jansangh members walked out, leaving it to emerge as the Bharatiya Janata Party by the end of the year. Okay. So ये फाइनल टर्म जो आया, रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी 80 to 84. तो 3 टर्म्स में आएगा. वो जो टाइमिंग है 769 से लेके 77, फिर 80 से लेके 84. तो पहला टर्म बहुत कम था, बीच का टर्म काफी लंबा था. दिस इज द थर्ड टर्म. Once again, Congress came to power with Indira Gandhi as the Prime Minister, but this time she was no longer the same person. वो काफ़ी change हो गए थे. Deserted by most of her colleagues during the 77-78 time पे, she had grown weary of people around her and trusted none other than her son Sanjay. She seemed to have grown tired and hesitated in taking strong decisions. और उसी टाइम 1980 पे संजय met with an accident while flying a stunt plane and died, leaving Indira even more psychologically drained and weakened. Following Sanjay's death, her elder son Rajiv Gandhi was brought into politics. Indira once again started the task of economic development. तो इसी टाइम पे काफी सारे इकोनॉमिक लिबरेशन प्रोग्राम्स हुए थे. देखो, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ. 1980 से पहले ग्रीन रिवोल्यूशन 1970s में काफी अच्छा हुआ. ओके, सो वन थिंग यू कैन लर्न इन द 1980 एग्रीकल्चर वाज वेरी सक्सेसफुल. प्लानिंग कमीशन ने उस टाइम प्लानिंग कमीशन, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर, आप काउंट कर सकते हो जो भी नंबर है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लानिंग कमीशन ने जितना भी टारगेट दिया था, ठीक है, जितना भी टारगेट दिया था, इट वाज अचीव्ड. टारगेट फॉर एग्रीकल्चर वाज अचीव्ड. इट वाज वेरी गुड टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, सो यू कैन मेंशन. ठीक है, एग्रीकल्चर का ट्रेंड इस टाइम पे काफी अच्छा था. सो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया उन्होंने, स्टार्टेड द टास्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. This time, taking note of changes in the world economy, she initiated certain measures in the field of economic liberalization. Even as she worked to strengthen the public sector. Public sector को और strengthen करने के लिए काम किया. However, burning issues on Kashmir, आसाम, आसाम में इन्फ्लक्स बहुत होता है. आसाम एकॉर्ड के बारे में आप लिख सकते हो, 1985 में हुआ, लेकिन इश्यूज वर ऑलरेडी स्टार्टेड, रिवोल्ट वगैरह और डिमांड वगैरह हो रहा था, बट असम एकॉर्ड बाद में हुआ 1985 में. एंड पंजाब could not be dealt with firmly with grave consequences leading to her assassination. और assassination हुआ था, सबको पता है क्यों हुआ था. On the morning of 31st October 1984, Indira Gandhi met a violent death when she was machine gunned by two of her own Sikh security guards for ordering the storming of Golden Temple to flush out the Sikh terrorist. Following the assassination, Rajiv Gandhi was immediately sworn as the new Prime Minister. Rajiv and Sonia, his Italian-born wife, reluctantly occupied this decision, little aware of the tragedy that was to occur 6.5 years later and sniff out Rajiv's life equally violently. तो अभी राजीव गांधी टू नरसिम्हा राव के टाइम पे जो हुआ था, मेन पॉइंट्स आपको याद करना है. आप सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था 1991 में. पंचायती राज का डिसीजन भी इसी टाइम लिया गया था. 1992 पे जो आया पंचायती राज पीआरआईज, लेकिन डिसीजन इन्हीं के टाइम पे लिया गया था, राजीव गांधी के टाइम पे. सो इट वाज वेरी गुड. ओके, सो यहाँ पे बस यू हैव टू रिमेंबर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है. दे हैव टू डील विद दिस 1984. फिर हाँ, जनरल इलेक्शंस हो गया. उनके जो टेनियर पे देयर वाज लॉन्च ऑफ 6 टेक्नोलॉजी मिशंस असिस्टेड बाय सैम पिट्रोडा, a US trained Indian telecommunication expert. राजीव गांधी gave a big push to India's computerization program. तो टेक्नोलॉजी मिशंस हुआ. कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, ठीक है. डिबेट हो रही थी कि यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स लेबर सोसाइटी में कंप्यूटर्स का क्या होगा, वो डिबेट भी चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया. फिर पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया. इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया और बाद में ही डब्ल्यूटीओ आ गया 1994 पे. ओके, बट यस, बफर स्कैंडल भी हुआ था, करप्शन भी हो रहे थे, ठीक है. तो उनका जो करप्शन फ्री इमेज था वो डैमेज हो गया. ओके, और नेशनल फ्रंट पे अलग अलग कोalition पार्टीज भी आ रहे थे, रीजनल पार्टीज आ गए थे साउथ में. तो 1991 के बाद हुआ, ये यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन मैं वो आई टेल यू नाउ कि एग्जैक्टली एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा ताकि आंसर में आप लिख सकते हो. जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगेन राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ. फिर उसके बाद कांग्रेस वंस अगेन एमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड फॉर्म गवर्नमेंट नरसिम्हा राव के टाइम पे वही 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ. ओके, एंड इंडियाज न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी और एनर्जाइज किया गया एंड आस्क्ड एपीजे अब्दुल कलाम टू प्रिपेयर फॉर न्यूक्लियर टेस्ट इन 1995, बट दे वर ड्रॉप्ड अंडर द अमेरिकन प्रेशर, जब यूएस का इंटेलिजेंस ने देख लिया था. ओके, फिर फाइनली पोखरण टेस्ट हुआ, सेकेंड में हुआ. सो हिज टेन्योर सॉ द इमरजेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इसी टाइम पे, व्हिच वाज एन ऑल्टरनेटिव टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हिच हैड बीन गवर्निंग इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. तो इसी टाइम भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंस हुआ जो आज के डेट में रूल कर रही है. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुआ, ये तो वैसे इकोनॉमी का पार्ट है. इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत हो गया था. ओके, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, ह्यूज रेवेन्यू डेफिसिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस पे चल रहे थे, एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स था टू फ्यूल ग्रोथ, ह्यूज फॉरेन डेब्ट.
hyperinflation, foreign exchange reserves were just 1.2 billion US dollars, which could sustain essential imports for just 3 weeks. हमारे पास इतना ही थे, तो सिचुएशन वाज वेरी बैड. सो फाइनली हमने IMF का सहारा लिया, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आता है. एंड IMF ने बोला कि वी हैव टू गो फॉर LPG, सो वी वेंट फॉर LPG. तो LPG में हमने जितना भी हमारा जो सोशलिस्ट पॉलिसीज था हमने उसको रिवर्स किया, एंड हमने लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया, बंद किया, एंड वी वेंट फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, LPG मॉडल. एंड इसमें हमने जो ट्रेड बैरियर थे उनको लोअर किया ताकि और अच्छे से ट्रेड हो, रिस्ट्रिक्शंस हटाया, रिस्ट्रिक्शंस फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज हटाया, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया. बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन उस टाइम पे हुए, meant ट्रांसफरिंग द गवर्नमेंट बिजनेसेस और प्रॉपर्टी टू प्राइवेट हैंड्स, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी लॉस पे चल रहे थे. ठीक है, तो ट्रेड और बढ़ा. प्लस इन 1991 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स एट द बेस्ट ऑफ IMF. ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी? इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी. सी, इंडियन इकोनॉमी सोसाइटी पे आप कर सकते हो, यस, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो. प्राइवेट को प्राइवेटाइज किया गया. उस टाइम पे आप देखोगे तो बहुत सारे सर्विसेज आने लगे, सर्विसेज सेक्टर स्टार्टेड एंटरिंग. ठीक है, मोबाइल फोन्स आए लेट 90s में. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो लेट 90s में मोबाइल फोन्स आए. ओके, सो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या ये सच में पॉवर्टी कम किया? अगर कम किया होता तो आज के डेट में पॉवर्टी में इतना हमारा रैंक काफ़ी ऊपर है, जो पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह आता है वर्ल्ड लेवल पे. हमने ये सब किया, ठीक है, हमने इंडस्ट्री से चीज़ें हटाई, हमने लाइसेंस राज हटाया, सब किया, लेकिन हमने अगेन वी डिड दैट सेम मिस्टेक. वी डिड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर. आप अगर ध्यान से देखोगे जिस तरीके से ये सब चीज हो रही थी, हमने एग्रीकल्चर को उस टाइम पे वही इंपोर्टेंस नहीं दिया, जैसा था वैसा चल रहा था. वी डिड नॉट इम्प्रूव एंड वी आर नॉट इवन इम्प्रूविंग नाउ ऑल्सो. एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है, जैसा था वैसा है. वी हैव टू इम्प्रूव इट इन टूडेज टाइम, बिकॉज हम उसको एग्रीकल्चर में आज के डेट में उसको टेक्नोलॉजी लाना है, उसको और अच्छा बनाना है. वी हैव टू मेक मैकेनाइजेशन अच्छे से उसको बढ़ाना है. अगेन हमने उसको नेग्लेक्ट किया. और रूरल एरिया में, जैसे कि मैंने बोला था कल के क्लास में, रूरल एरिया में 48 to 49% ऑफ वर्कफोर्स रहते हैं एग्रीकल्चर में. अब एग्रीकल्चर ही अगर नहीं ठीक से चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे तो पॉवर्टी रहेगी ही, आज भी है. एंड पॉवर्टी इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल. पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल. आप एक चीज को करके आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ IMF से ले लिया हमने, LPG कर दिया तो पॉवर्टी बंद हो जाएगी. नो, poverty is related to inequality, poverty is related to hygiene, poverty is related to education, nutrition, government expenditure, everything, shelter, each and every. It's, we simply can't say कि LPG करने से poverty क्लियर हो जाएगी, नहीं हो पाएगी. इट हैज टू बी एग्रीकल्चर सेक्टर, MSME, सब सेक्टर को देखने के बाद ही हम पॉवर्टी को एज अ, बिकॉज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व इट हॉलिस्टिकली. ओके, तो उस आंसर को उस हिसाब से लिखोगे. और एक क्वेश्चन है, वाज लिबरलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द फाइनल सरेंडर टू इंपेरियलिज्म ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक IMF वर्ल्ड बैंक कंबाइंड? मतलब क्वेश्चन है कि क्या हमने ये जो चीज़ हमने उन दोनों की बात मानी, IMF की बात मानी, क्या ये हमारा कहीं ना कहीं एक फाइनल सरेंडर टू देम? तो आपको दो तरफा लिखना है. दिस क्वेश्चन कैन कम इन GS. You have to write it on your own language. See, yes, at that point of time we did not have any option. We had to take. ठीक है, हमने लिया, हमने सरेंडर नहीं किया है, बस हमने कहीं ना कहीं, बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ IMF. तो फिर IMF का मेंबर बनने का क्या फायदा था? फिर वी बिकेम ए IMF मेंबर इन ऑर्डर टू टेक द सर्विसेज, राइट? इट इज नॉट ए सरेंडर. It is not a surrender. We are paying them also. It is kind of an insurance. We are paying them. हम IMF को पे भी तो करते हैं. अच्छा, प्रॉब्लम्स आएगी तो उसका सर्विस भी लेंगे.
So it is not a surrender. Huh. We moved towards capitalist from 1991, but that was needed. Things were not going because we did mistakes. See, socialism is not a mistake. We are not able to handle socialism. See, socialism हमने किया. It was okay, very good from 1948. But did we handle it nicely? No, corruption, leakages, the improper economic planning, centralization. तो ये सब सही से करोगे तभी जाके सोशलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगी, राइट? लेकिन वो हो नहीं पाई. तो हमारे पास कुछ था नहीं, सो वी हैड टू मूव टू कैपिटलिज्म बिकॉज वी नीडेड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में ओनली 1.2 बिलियन डॉलर है जो कि ओनली इंपोर्ट्स ऑफ 3 वीक्स को सस्टेन कर पाएगा. वी हैड टू डू इट. तो हमने किया. सो दैट डज नॉट मीन कि हमने सरेंडर किया. वन मोर पॉइंट, वी डिड नॉट सरेंडर. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, इन टूडेज टाइम वी आर पार्ट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. We are part of New Development Bank of BRICS. We are part of Asian Infrastructure Development Bank, which in a way they are countering. They are countering WB and IMF influence. IMF gives money and helps when there is a BOP problem. So we have a BRICS. We have an arrangement that is CRA arrangement, contingent reserve. क्या था CRA का फुल फॉर्म? एनीवन? कॉन्टिजेंट रिजर्व करके कुछ है CRA का. डन बाय ब्रिक्स अरेंजमेंट, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ब्रिक्स का है, राइट? Now they have also brought CRA for this helping BOP. Any countries having BOP problem, they will help. So we are not surrendering. We are part of this also. We are part of that. We are part of this also. So you have to write that answer in that way. You simply can't say, we surrendered. No, you have to justify. See, if you write surrender, you have to justify. If you write we are not surrendering, we have to justify. I am justifying. I told you, dear, no. We took it because we needed it. And also we have these things like a CRA of BRICS. We have NDP, we have AIIB. So it's clearly I'm justifying we have not surrendered. We have our own place. Okay? So these two questions are required. This question is not required for exam point of view. What has changed the scenes of rise of BJP? Political questions will not come, but these two questions are very important. तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोला वैसा आपको आंसर के फॉर्मेट में लिखना है. वेरी इजी. ठीक है? ओके फाइन. थैंक यू.